In today's episode, I'm going to answer questions on how one can go about finding their purpose in their life. I'm also going to answer questions on how do you handle yourself mentally when your life is not happening the way you'd want and you have been really struggling in it from years and years. And the last question that I'm going to answer in today's episode is how one can go about achieving humongous growth in this materialistic world through the process of mental toughness. So if you want answers to all of these questions, then make sure you stay till the very end. Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum. I welcome you to the second episode of Relentless Talk with Ravneet. Today I'm going to answer 3 questions just like last time. So let's get started very quickly, and I'm going to ask Chaitali, my partner, to read out the questions for us. So Chaitali, what's the first question that we have for today? So the first question is from Manoj. He's asking, can you suggest how to go about finding our purpose in life? Do we need to do some brainstorming with ourselves based on our likes, dislikes, interests or anything else? Also, I feel maybe life purpose when I find one will keep on changing with time as I don't want it to be rigid to fix for my whole life. But still, is there a specific way through which I can develop my purpose which can help me build myself overall as a better person in all areas of my life? Okay, so Manoj, thank you first of all for your question, life purpose. Amazing question, fantastic question. ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत लोग अपने आप से पूछते हैं. मैं समझ सकता हूँ आपके दिमाग में क्वेश्चन क्यों आ रहा होगा, और आप जब मेरे को सुनोगे तो क्या पता आप कनेक्ट भी कर पाओ. ये लोगों के दिमाग में बहुत क्वेश्चन आता है कि रवनीत मैं अपने लाइफ में पर्पस कैसे फाइंड आउट करूँ, और ये इसलिए क्वेश्चन आता है क्योंकि हमारे आसपास इतनी बातें चलती है, इतने सक्सेसफुल लोग बात करते हैं. यू नो व्हाट, यू शुड हैव अ पर्पस इन योर लाइफ. If you have a purpose in your life, if you have a larger than life purpose, then it is going to help you to achieve more. If you don't have a purpose in your life, then you're confused, you have no clarity, then you will underachieve. एक टाइम था मेरी लाइफ में भी, मेरे को ऐसा ही था कि मुझे भी अपनी लाइफ में एक पर्पस चाहिए था, और उस समय मुझे लगता था कि मेरी लाइफ का पर्पस है that you know what, I really want to do something great for this country, either through coaching or either through politics. So आपका जो क्वेश्चन है कि अपने लाइफ में पर्पस कैसे फाइंड आउट करें, आपका दूसरा क्वेश्चन भी है हाउ डू आई गो अबाउट फाइंडिंग माय लाइफ पर्पस थ्रू इंटरेस्ट, थ्रू लाइक्स, डिसलाइक. मैं करूँ तो करूँ क्या? जो मैं आपको बोलने वाला हूँ आप ध्यान से सुनना, और अगर आपको समझ में आता है तो आप यू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर ऑन. ये जो लाइफ पर्पस की जो बात होती है ना, इसलिए इतनी बात होती है क्योंकि हमने आसपास बहुत लोगों को सुना है दैट यू शुड हैव अ पर्पस इन लाइफ, यू शुड हैव अ पर्पस इन लाइफ, अ लार्जर देन लाइफ पर्पस. मैं बताता हूँ व्हाट डू आई थिंक अबाउट पर्पस टुडे. Not 3, 4, 5 years back, what do I think about purpose, life purpose today? In this world, every single human being, 7.8 billion people, every single individual among 7.8 billion people has no life purpose other than to live their life in the most amazing, the most fantastic, in the most elegant way. अब जब मैं ये बात बोलता हूँ, being a mental toughness coach, बहुत लोग disagree करेंगे. Why? Because this is something that most people would not expect me to say. Being a coach, being a mental toughness coach, क्योंकि बहुत सारे successful लोग, बहुत सारे speakers बोलते हैं, you should have a purpose in life. When I have a purpose to impact these many people's lives, I have a purpose to, let's say, impact 10 million lives. I have a purpose to open an NGO and serve orphanage children. मेरा purpose है to give the best to my family. मेरा purpose है to be able to get independence for my country. मेरा purpose ये है, मेरा purpose वो है, मेरा purpose ये है. बहुत लोग इतनी सारी बुक्स लिखे हुए हैं पर्पस के ऊपर, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आएगा कि लाइफ में कुछ पर्पस होना चाहिए. अगर लाइफ में उस तरीके का पर्पस नहीं है, आस्क योरसेल्फ, इफ एनीबॉडी डज नॉट फिगर आउट सो कॉल्ड लाइफ पर्पस इन देयर लाइफ, इज योर लाइफ नॉट वर्थ लिविंग? अगर किसी इंसान को 7.8 बिलियन लोग रहते हैं, उनको ना पता लगे कि वो लार्जर देन लाइफ पर्पस क्या है, सो इज योर लाइफ नॉट वर्थ लिविंग? Listen to me carefully. I'm going to answer the question in complete totality. Is your life not worth living? Is the first question that you should ask yourself. ये जो हम सोचते हैं ना बीच में, जैसे मैं भी सोचता था, I want to impact these many people's lives. I want to do great for this country. I want to do this. ये जो भी हम चीजें करना चाहते हैं, I want to become the richest person on the planet. जो भी हमारे बीच में जो पर्पस आते हैं, जो हम सोचते हैं ना, these are so called purpose. ये पर्पस नहीं होते. These are just are milestones which we create in our mind which we want to achieve. चाहे आपको लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना है, 10 मिलियंस लाइफ को, आपको ये करना है, आपको वो करना है, यू वांट टू डू ग्रेट फॉर द कंट्री, यू वांट टू सर्व पीपल इन सम और द अदर वे. जो भी आप, बहुत लोग बोलते हैं ना लाइफ में पर्पस है,
बहुत सारे लोग जो बोलते हैं वो पर्पस नहीं होता है, वो आपके माइलस्टोन्स होते हैं जो आप दिमाग में क्रिएट करते हो, विच यू वांट टू अचीव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर लाइफ. दीज आर नॉट लाइफ पर्पस. देयर इज नो लाइफ पर्पस अदर देन टू लिव लाइफ. और ये बात समझने के लिए मुझे जरूरी नहीं है कि हर कोई बोलते तो मुझे वही चीज एक्सेप्ट करनी है. जस्ट बिकॉज मैंने 1000 लोगों को सुना है, इतनी सारी बुक्स लिखी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो एक्सेप्ट करना है. सोच के कभी देखना कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है. ये पता है हम क्यों सोचते हैं? बिकॉज वी थिंक एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर वेरी वेरी स्पेशल. प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग के साथ ये है, कभी इस दुनिया में कितने सारे क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं. सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स थोड़ी ना है. देयर इज एंट्स, देयर इज कैट्स, देयर इज डॉग्स, देयर इज ज़ीब्रा, देयर इज कैमल. कितने सारे एनिमल्स, कितने सारे छोटे छोटे क्रिएचर हैं. उनकी लाइफ का पर्पस क्या है? हमने अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी ना एज ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज वी आर रूलिंग द प्लेनेट. हम प्लेनेट को रूल करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में है दैट बिकॉज वी आर रूलिंग द प्लेनेट एंड नो द क्रिएचर, God has given, Allah has given, Vaheguru has given a special purpose to each and every human being. और बिकॉज इतने सारे लोग बोलते हैं तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम ये सुनते हैं, तो हम भी अपने बिलीफ में लग जाते हैं कि भगवान ने ना ह्यूमन बीइंग्स को, हर एक ह्यूमन बीइंग को एक पर्पस दिया है. किसी को कोई पर्पस नहीं दिया भगवान ने. हमने अपने आप को बहुत स्पेशल समझ के रखा हुआ है एज ह्यूमन बीइंग्स. We are no different than any other creature. Yes, we are ruling the planet, but we are no different than any other creature. हर कोई creature भी has only one purpose, is to live their life. Whatever life has been given to them is to live their life the most amazing way possible. उसी तरीके से human beings का भी purpose यही है, to live their life. ये जो बीच में milestones होते हैं, goals होते हैं, ये goals है, ये milestones है, ये purpose नहीं है. और ये बात समझ नहीं आएगी लोगों को, मुझे पता है, क्योंकि मेरे को बहुत देर बाद समझ में आई है. बहुत लोग नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशनिंग कितनी भयंकर है. So the first thing that we need to understand, Manoj, is this, that there is no other life purpose but to live your life in the most fantastic, elegant way. अब सेकंड चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ पर्पस के लिए, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में क्यों आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ क्यों आ रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मे बी राइट नाउ यू आर कंफ्यूज्ड इन योर लाइफ. मे बी राइट नाउ यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मे बी आपका बिजनेस है, मे बी आप जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है. आपको क्लैरिटी नहीं करना क्या है, जो भी आप चीज कर रहे हो उससे आप हैप्पी नहीं हो. इसलिए क्वेश्चन आ रहा है कि रवनीत, अगर मुझे एक लाइफ में पर्पस मिल जाए ना, तो मैं उसकी तरफ भाग लूंगा. Then I have something to look forward, something to work toward. वो पर्पस नहीं होता है, वो माइलस्टोन रहेगा. अगर कुछ मिल जाए, आपका पर्पस लाइफ जीना ही है और कुछ नहीं है. पर अगर आप आज कंफ्यूज्ड हो और आपको क्लैरिटी चाहिए, सो यूज द वर्ड क्लैरिटी. रवनीत, आई नीड टू बी क्लियर. वो पर्पस नहीं है, वो क्लैरिटी करने के लिए कि क्या होना चाहिए, वो क्लैरिटी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए. लिसन टू दिस. मेरी लाइफ में भी एक टाइम था जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, मेरे को भी क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे करना क्या है. आई वाज नॉट हैप्पी. आई वाज डूइंग ग्रेट फॉर माई सेल्फ, बट आई वाज नॉट हैप्पी. उस समय पे मैंने सब चीजें एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया. आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोस, आई स्टार्टेड गोइंग टू सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल, आई स्टार्टेड अटेंडिंग इवेंट्स. मैंने हर चीज करी, हर चीज एक्सप्लोर करी. करते वन डे आई केम अक्रॉस दिस वर्ल्ड ऑफ कोचिंग, आई केम अक्रॉस दिस वर्ल्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई गॉट इंटरेस्टेड. जब मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ, मैंने उसको और परस्यू करा. जब मैंने और परस्यू करा, मेरा और इंटरेस्ट पैदा हुआ और धीरे करके आज ये चीज है जो मेरे को ड्राइव करती है, जो मेरे को अपनी लाइफ में करनी है. पर ये मेरा पर्पस नहीं है, मेरी लाइफ का ये पर्पस नहीं. हमने अपने पर्पस को ना अपने आप को गलत बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पर्पस वैसा पर्पस. ये हमारे माइलस्टोन्स ही रहेंगे. आप if you are one person, if I am one person, if I can impact 7.8 billion people also lives on this planet through the process of mental toughness, वो मेरा पर्पस नहीं है. मेरा पर्पस है to live my life. So I am answering your question in two ways. First, there is no life purpose. किसी की लाइफ में किसने, भगवान ने दिया है. भगवान ने हमें कोई स्पेशल बनाया नहीं ह्यूमन बीइंग्स को. हमें लगता है कि हम बहुत स्पेशल है एज क्रिएचर, बिकॉज वी आर रूलिंग द प्लेनेट एंड नो द क्रिएचर इज रूलिंग द प्लेनेट. इसलिए हमें बहुत स्पेशल लगता है. इसलिए हम सोचते हैं कि भगवान ने हर किसी इंसान को एक स्पेशल पर्पस दिया है. भगवान के पास इतना टाइम नहीं है, वाहिगुरु जी के पास इतना टाइम नहीं है, अल्लाह के पास इतना टाइम नहीं है, जीसस के पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक इंसान को ना स्पेशल पर्पस है. ये बात समझने के लिए ना हमें बस अपने अंदर थोड़ा झांकना पड़ेगा. जस्ट बिकॉज आसपास पूरी दुनिया बात कर रही होती है, जरूरी नहीं है कि बहुत सच्ची है. अब आप सोच सकते हो रवनीत आप भी तो ये बात करते हो, आपकी बात भी सच्ची नहीं है, तो फिर मत समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर ये मेरी थिंकिंग है, कोई लाइफ पर्पस नहीं है. हमारी लाइफ का पर्पस ये लाइफ को लिव करना इन द मोस्ट अमेजिंग वे पॉसिबल. जो बीच में आते हैं वो सब माइलस्टोन्स होते हैं. सेकंड पार्ट, अगर आपका ये क्वेश्चन है, ये इसलिए बिकॉज आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है. सो व्हाट आई वुड आस्क यू डू इज एक्सप्लोर एवरीथिंग. Explore, learn new skills, meet new people, attend events, do everything. Explore. When you explore many things, आपको किसी न किसी चीज में इंटरेस्ट आएगा. जब वो इंटरेस्ट आएगा तो आप उसको परस्यू करो. देखो कि आपको और इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा. अगर और इंटरेस्ट आया तो और परस्यू करो.
एंड मे बी यू विल फिगर आउट कि ये चीज है ऑन विच आई शुड एक्चुअली वर्क अपॉन, ये चीज है ऑन विच आई शुड एक्चुअली टेक इट फर्दर। जिस तरीके से मेरी लाइफ में कोचिंग हुआ या जिस तरीके से किसी और की लाइफ में कुछ होता है, जेफ बेजोस की लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप होगा, विराट कोहली की लाइफ में क्रिकेट होगा, आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करते करते पता लग जाएगा आपको क्लैरिटी क्या चाहिए। So this is what my answer to your question will be. I hope that answers the question in the best possible way. So Chaitali, what's the second question that we have for today? So the second question is from Raj Shekhar. He's asking that how to handle ourselves mentally when you see that no matter how hard you try, life isn't happening your way. Sometimes it becomes really difficult to get up every day when you have a big doubt in your head whether life is going to happen my way. Please suggest how to handle this situation. So राजशेखर, आपका क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन क्यों है? क्योंकि अगेन जस्ट लाइक मनोज का भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना एक्चुअली बहुत लोगों के दिमाग में होता है, क्या पता पूछते नहीं पूछते। क्वेश्चन क्या है? रवनीत, मेरी लाइफ में मेरे हिसाब से चल नहीं रही है बहुत सालों से, तो मैं अपने आप को हैंडल कैसे करूं मेंटली। सबसे पहली बात जो हमें समझनी पड़ेगी राजशेखर, ये है हमारी लाइफ हमारे हिसाब से कभी नहीं चलने वाली है। हम छलावे में रह रहे हैं। अगर हमें लगता है ना हमारी लाइफ हमारे हिसाब से चलेगी, तो ये बहुत बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा झूठ है जो हम अपने आप को बोल रहे हैं। इस दुनिया में किसी की लाइफ भी उसके हिसाब से कभी चल ही नहीं सकती। लेट्स से टुडे यू मीट द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट, जेफ बेजोस। लेट्स से यू मीट द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, मुकेश अंबानी। लेट्स से यू मीट द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, लेट्स से विराट कोहली। लेट्स से यू मीट द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर राइट नाउ, रॉजर फेडरर और राफेल नडाल। लेट्स से यू मीट एनीबॉडी इन एनी स्फीयर, स्पिरिचुअलिटी में, पॉलिटिक्स में, नरेंद्र मोदी को मिलो, आप किसी को भी मिलो, आप उनसे पूछना क्या उनकी लाइफ उनके हिसाब से चल रही है? आपको आंसर मिलेगा बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया में किसी की लाइफ 100% उसके साथ चलती है ही नहीं, ना तो मेरी लाइफ चल रही है और कभी चलेगी भी नहीं। पॉइंट ये है कि अगर आपके पिछले कुछ सालों से आपके हिसाब से लाइफ नहीं चल रही है, सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी इस दुनिया में किसके हिसाब से उनकी लाइफ नहीं चलने वाली है। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगा कि हर किसी इंसान की एटलीस्ट 65, 70, 75%, 70-75% लाइफ हमारे हिसाब से हो रही है। ऐसा नहीं है हमारे हिसाब से नहीं हो रही। अपने आप से पूछो, देखो आपके ऊपर छत है रहने के लिए, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा है, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, कुछ दोस्त हैं, पैसा आ रहा है, सैलरी आ रहा है, खाना खा पा रहे हो, ये सब चीजें हो रही है नहीं हो रही है? बहुत सारी चीजें हमारे हिसाब से हो रही है, ऐसा नहीं है नहीं हो रही है। 70 से 75% लाइफ हमारे हिसाब से हो रही है। प्रॉब्लम पता है ह्यूमन बीइंग्स की क्या है? वहीं पे मेंटल टफनेस नहीं। प्रॉब्लम ये है जो 20-25% हमारे हिसाब से लाइफ नहीं हो रही ना, मे बी इन करियर, मे बी इन फाइनेंसेस, मे बी इन हेल्थ, मे बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, मे बी इन एनी एरिया, जो 20 से 25% नहीं हो रही, प्रॉब्लम उसी की है। इतने जो कुछ साल आप बोल रहे हो कि आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं हुआ है, एक बार सोच देखो इन सालों में कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हुआ है। बहुत कुछ आपके हिसाब से हुआ होगा, ऐसा नहीं आपके हिसाब से नहीं हुआ, बहुत कुछ आपके हिसाब से हुआ होगा, बट हमारा फोकस उस पर नहीं जाता। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, इफ वी थिंक हमारी लाइफ हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ हमारे हिसाब से होगी नहीं। इस दुनिया में किसी की लाइफ किसी के हिसाब से नहीं होती है। अगर आप भगवानों की भी, हमारे जो हर एक धर्म में भगवान भी है, उनकी भी लाइफ उठा के देखोगे ना, उनकी भी लाइफ उनके हिसाब से नहीं हुई थी। क्या राम जी की लाइफ उनके हिसाब से हुई थी? किसी की लाइफ उनके हिसाब से नहीं होती है। पहला पॉइंट, हम किसी की भी लाइफ, हमारी जो अंदर की स्टोरी चलती है, स्क्रिप्ट हमारे हिसाब से नहीं चलने वाली है, वो है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, जब हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, तो आपको सेकंड स्टेप ये करना है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि अगर मेरे हिसाब से आज लाइफ नहीं है, इतने सालों से नहीं चल रहा है, करियर में, बिजनेस में, किसी भी एरिया में, तो मैं एक्सेप्ट करूं। बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते, दे आर स्टिल लिविंग द पास्ट, दे आर स्टिल हैविंग दैट रिजेंटमेंट रहेगा तो आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच नहीं पाओगे। सो सेकंड स्टेप इज एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी है यार, आज किसी भी एरिया में मेरी कैसी भी लाइफ चल रही है, आपको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप, जब आप एक्सेप्टेंस करोगे, देन यू नीड टू फोकस ऑन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मेरे हिसाब से इस एरिया में मेरी लाइफ नहीं चल रही है, मैं 6, 7, 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, पैसों में स्ट्रगल कर रहा हूँ, करियर में स्ट्रगल कर रहा हूँ, इधर उधर स्ट्रगल, कहीं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, अगर आप कर रहे हो स्ट्रगल, तो आप एक्सेप्टेंस के बाद थर्ड स्टेप होता है आपका फोकस किधर है। आपका फोकस प्रॉब्लम में है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे दिमाग में तो ये स्क्रिप्ट चल रही थी। यही सब सोचते रहोगे, प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे, तो सोल्यूशन के बारे में कब सोचोगे? थर्ड स्टेप होता है कि आपकी लाइफ आपके हिसाब से जो नहीं चल रही हो ना, एक्सेप्टेंस करके आपको सोल्यूशन पे फोकस करना है। अगर नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है? क्या कुछ मैं लैक कर रहा हूँ? क्या कुछ मुझे सीखना है नया? क्या कुछ मुझे नई स्किल्स की सीखने हैं? कुछ और सीखना है? कुछ ना कुछ तो आप लैक कर रहे होगे ना, आपको उस पर काम करना है।
आपको फोकस डालना है सोल्यूशन पे, प्रॉब्लम पे फोकस डालोगे तो आप हमेशा वो पास्ट में जीते रहोगे। मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है। लाइफ इज नॉट गोना हैपन आवर वे। जब हमारे हिसाब से नहीं होती है, वी जस्ट नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर एक्सेप्ट एंड देन वी नीड टू फोकस ऑन द सोल्यूशन टू चेंज द थिंग्स, टू चेंज आवर लाइफ। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू एंड योर लाइफ टू चेंज गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। So answer to your question is very simple. To make sure अगर आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं हो रही है, एक्सेप्ट करो कि पहले आपके हिसाब से नहीं हो रही है, इट्स ओके, यू गॉट टू एक्सेप्ट इट एंड देन यू गॉट टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, यू गॉट टू फोकस ऑन सोल्यूशन। करना क्या है लाइफ को चेंज करने के लिए, और कितनी बार भी रोड़े आ जाए, कितनी बार भी फेलियर आ जाए, तब भी सोल्यूशन पे फोकस करना है। और वहीं पे आपको एक मेंटल टफनेस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज बहुत लोग फिर गिव अप मार देंगे, फिर गिव अप मार देंगे। और वहीं पे आपको रेजिलिएंट रहना है, आपको रिलेंटलेस रहना है कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, अगर कोई चीज नहीं भी काम कर रही है, how do I still focus on a solution? How do I still make sure that my mental focus is only on the solution and not on the problem? So I hope that answers the question, Rashika. So let's move to the last question that we have today. So what's the third question, Chetali, that we have for today? So the third question is from Mahendra Palecha. He's asking that how I or anyone can achieve a humongous growth in a materialistic world with the help of mental toughness. So Mahendra, fantastic question. How you can achieve humongous growth in this materialistic world through mental toughness? जब आप materialistic world की बात करते हो, I'm guessing आपका मतलब है regards to money, regards to career, regards to success, regards to growth, regards to business, all of these things, things comes in materialistic world. So how you can achieve 10x growth, 15x growth, 20x growth through mental toughness? इसको समझने के लिए पहले हमें mental toughness को समझना पड़ेगा. Now mental toughness has a lot of aspects. There are a lot of skills that we need to learn if we really want to become mentally tough. But अगर मुझे एक सिंपल सी परिभाषा देनी है mental toughness की, एक सिंपल सी लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है, I would say mental toughness is your ability to dominate your mindset and forget how to give up in life. Think about it. सोच के देखो, जब लोगों को मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेस चाहिए होती है, करियर, जॉब, बिजनेस, लेट्स से करियर, क्या होता है? People are not able to become relentless in making sure that they achieve their success in their career. कैसे? जब आपके करियर में प्रॉब्लम्स आती है, मान लो if you have been fired from the job, मान लो आपकी प्रमोशन, आपकी ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही है, people go into their zone, people start convincing themselves कि you know what, मेरे से नहीं होगा. If your company is not recognizing your efforts, if they're not giving you that pay hike, that salary, instead of really looking at what they need to change within themselves, उनको क्या स्किल्स लर्न करने हैं, किस तरीके से काम करना है, उनको नेगोशिएशन सीखना है, इन्फ्लुएंस सीखना है, क्या कम्युनिकेशन सीखना है, किस तरीके से क्या स्किल्स सीखने हैं जिससे वो करियर में आगे बढ़ सके, वो इस पे फोकस नहीं करते हैं. वो ये सोच लेते हैं, अपने आप कन्विंस कर लेते हैं, यू नो व्हाट, आई वुड नेवर बी एबल टू बिकम द सीईओ. क्योंकि सीईओ बनने के लिए ना कुछ अलग सी पेडिग्री होनी चाहिए, एबीपी बनने के लिए ना कुछ अलग सी पेडिग्री होनी चाहिए, कोई पेडिग्री नहीं होती. सिमिलरली इन बिजनेस, बहुत लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अगर फेल हो जाते हैं, देन दे गिव अप अगेन. They think यार अगर एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, business is not my cup of tea, मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. Same is the case with health. People again give up. When you want to join the gym, pay for the gym membership, get a workout plan, get a meal plan. 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 5 दिन गए, रिजल्ट नहीं दिखे, या उसके बाद कोई एक्सक्यूजेज आ गया, माइंड ने आपको डोमिनेट कर दिया, your mind is making you lazy, procrastinate, and then you are convincing yourself, छोड़ यार मेरे से नहीं होगा, मेरे से वेट लूज नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा, मैं अपने फूड पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्रेविंग्स पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा. देन यू गिव अप. इन स्पिरिचुअलिटी आल्सो, यू नो, आई वांट टू बिकम स्पिरिचुअल, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू रियली मेडिटेट. 2 दिन मेडिटेट करेंगे, 3 दिन मेडिटेट करेंगे, और उसके बाद जब मेडिटेशन जब करने बैठते हैं, आपके थॉट्स कहीं और जा रहे हैं, आपका फोकस कहीं और जा रहा है, आप ध्यान लगा ही नहीं पा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, तो फिर छोड़ो यार, अब मेरे से नहीं होगा, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं, मेरे से हो नहीं सकता, तो आप मेडिटेशन छोड़ दोगे. स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई कोर्स भी ज्वाइन करोगे, नहीं मेरे लिए रिजल्ट नहीं आ रहे, तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी पे गिव अप मार दोगे. दुनिया में गिव अप मारना ना बहुत इजी है, हर एरिया में. रिलेशनशिप में भी यही है. आज अगर बातचीत नहीं हो रही ढंग से, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, इश्यूज है, then you give up, you stop talking, you stop communicating, you go for separation, you go for divorce, or you have a cold war, or you just accept, convince कर लेते हो कि छोड़ो यार, after some point ना रिलेशनशिप में इशू तो होना ही है. Instead of learning what skills that you need for you to be able to create a great relationship with your partner. Point is this, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में किसी भी चीज में ग्रोथ चाहिए होती है ना, उस ग्रोथ को पाने के लिए we need to have a mindset which is relentless to not give up, which is relentless to not give up. Only when you learn how not to give up in life, if you learn how not to give up in life, would you achieve any kind of growth that you want? Yes or no? Maybe not once, maybe not in the first attempt, maybe not in the second attempt, maybe not in the third attempt, but क्या आप अचीव करोगे?
Yes or no? Take an example of KFC guy, Colonel Sanders. जिस बंदे ने KFC start करा, Colonel Sanders. This person failed in his life from the age of 17 till the age of 60. 60 की age में भी he was failing again and again. He created a chicken recipe, chicken fried recipe, and he went door to door to sell his recipe. 1009 लोगों ने उसको मना किया, 1009 दरवाजे खटखटाए और उन लोगों ने मना करा. पहले तो 17 से 60 साल तक हर एक चीज में फेल हो रहा था. आप कभी उसकी स्टोरी देखना. 60 साल में भी एक चीज नई स्टार्ट करता है अपनी चिकन रेसिपी को बेचने के लिए और 1009 लोगों ने उसकी चिकन रेसिपी को मना किया. फिर भी उसके बंदे के अंदर इतना गुद्दा था कि वो 1010वें बंदे के पास जाए और वो डोर को नॉक करे. एंड दैट वाज द डोर व्हिच सेड यस. एंड बाय द टाइम ही डाइड ही वाज अ मिलियनेयर. कर्नल सैंडर्स. मेरी लाइफ में खुद कोचिंग में क्या प्रॉब्लम नहीं आई है. मेरी लाइफ में हर एक एरिया में प्रॉब्लम आई है. बट when you forget how to give up in your life, when you just forget how to give up in your life, is what is going to help you achieve humongous growth in this materialistic world. So mental toughness किस तरीके से help कर सकता है in a simple word. अगर आप यही सीख लो ना कि अपने mind को dominate कैसे करूँ, to forget how to give up in life, just like a athlete, most athletes have this mindset of not giving up. If you can build that kind of a mindset to not give up in life in any area, would you be able to achieve success? Maybe not in the first round, not in the second, not the third, but fourth or fifth. और यही आपको success दिलाएगी. So how you can achieve humongous growth in this materialistic world through the process of mental toughness is only by learning how to dominate your mindset and forget how to give up in your life. So I hope, Mahinder, that answers the question. So with this, we have come to the end of this amazing, fantastic episode. I hope this episode was worth your time. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन मुझे Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp number which is displayed on the screen आप भेज दीजिए. Maybe the next week your question will be the one that I'm going to answer. So I'm going to see you next week. Have a fantastic week and make sure you keep asking your question. I'm going to see you next week. Thank you so much.